Good morning, student. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. Now, this is the lecture of your fundamental of ICT. In our last lecture, we started our unit 4, that is presentation tool. Okay. Now, in that lecture, what we learn? We learn about what is presentation, then how to create, open, and save your presentation, then how to add. You can how to give the save effect. Okay, these all the topics that we learned in our previous lecture. Now, first of all, tell me what is presentation. Now, presentation is a process by which we can presenting a specific topic to the specific audience. And how you can presenting this topic and how you can presenting the topics. To present a topic, you have to use the slide. So, in a presentation, you can use the slide to presenting your topics, okay, to the special audience. Now, today we are going to learn how to insert the media element. Okay. Now, in your presentation, you can insert the different media elements, like you can insert the audios, videos, then graphics. Okay. So today we are going to learn how we can add the images, then video and audio in our presentation. Now, first we start with how to insert the images into presentation. Now, when we add pictures and images, that can be make our presentation more interesting and engaging. मतलब जब भी हम लोग कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, तब हम लोग जब उसमें कोई भी इमेजेस ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो हमारे प्रेजेंटेशन को मोर अट्रैक्टिव बनाता है एंड यूज़र को इजीली जो भी कंटेंट है वो अंडरस्टैंड होते हैं और वो रीड कर सकता है. ओके, सो वेन एवर यू एड एनी इमेज देन इट विल मेक अवर प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव. सो we can insert the pictures in our presentation by two ways. Whether you can use insert from the files on the computer, okay, or you can also insert a picture from online, or you can also add a screenshot. मतलब हम लोग हमारे प्रेजेंटेशन में जो इमेज ऐड करना है वो हम लोग हमारे कंप्यूटर में जो भी इमेज सेव्ड है वो ऐड कर सकते हैं. नहीं तो हम लोग को कोई पिक्चर्स जो हमारे कंप्यूटर में ऐड नहीं है तो हम लोग उसको ऑनलाइन सर्च करके भी ले ऐड कर सकते हैं. अदरवाइज़ आप लोग स्क्रीनशॉट भी हमारे प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं. सो जब भी आप लोग कोई भी इमेज हमारे प्रेजेंटेशन में ऐड करते हो तो वो हमारे प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाता है. ओके, सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ टू इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम द फाइल. दैट मीन्स कैसे हम लोग हमारे प्रेजेंटेशन में हमारे कंप्यूटर में जो भी इमेजेस सेव है उसको ऐड कर सकते हैं. सो देखो, अगर आपको इमेज जो हमारे कंप्यूटर में सेव्ड है उसको इंसर्ट करना है देन फर्स्ट यू हैव टू गो टू द इंसर्ट. ओके, कौन से टैब पे क्लिक करना है, इंसर्ट टैब पे. देन यू कैन सी द हियर पिक्चर. ओके, so click on the picture tab and here this picture tab insert a picture from your computer and stock image library or online sources. देखो ये जो पिक्चर्स है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे जो भी कंप्यूटर में सेव्ड पिक्चर है वो इंसर्ट कर सकते हैं. तो देखो ये आप लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर में जो इमेजेस है वो पिक्चर नाम के फोल्डर में सेव्ड पिक्चर पे स्टोर है. तो देखो वहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे, जो भी पिक्चर आप लोग को इंसर्ट करना है उस पर आप लोग क्लिक करना है एंड यू हैव टू आफ्टर क्लिक ऑन दिस इंसर्ट बटन. तो क्या होगा, जो भी पिक्चर आप लोग ने सिलेक्ट किया होगा वो आपके स्लाइड में डिस्प्ले होगा, तो आप लोग के प्रेजेंटेशन में ऐड हो जाएगा. ओके, सो कैसे हम लोग पिक्चर ऐड कर सकते हैं फ्रॉम फाइल. फॉर दैट यू हैव टू गो टू द इंसर्ट then picture and then go to the place where your image is saved and select the one of the picture from that. Okay, then second है insert picture online. मतलब फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में जो इमेज आप लोग को चाहिए वो नहीं है तो आप लोग उसको ऑनलाइन सर्च करो और ऑनलाइन सर्च करने के बाद आप लोग उसको डाउनलोड करके डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो. सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, you have to go to the insert. Okay, insert पे जाना है. then you can see here the option that is online picture. कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, ऑनलाइन पिक्चर. सो
here you can use this option to find and insert feature from the online sources. तो देखो फॉर एग्जांपल हम लोग इंसर्ट करते हैं पिक्चर, देखो तो वहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं. फर्स्ट आप लोग सर्च कर सकते हो वन ड्राइव पे से, और दूसरा बीइंग इमेज. ओके, सो वन ड्राइव का है image store on the caps we added to the presentation. Also, other online account can be linked with the Microsoft account such as a Facebook and Flickr. तब हम लोग को कहाँ से यूज़ करेंगे, हम लोग वन ड्राइव पे से. नहीं तो बिंग सर्च में करना है तो क्या कर सकते हो आप लोग डायरेक्टली जो सर्च बिंग आपको दिख रहा है इधर, वहाँ पे आप लोग का जो भी टॉपिक है वो डालो. फॉर एग्जांपल आपको फाइंड करना है इमेजेस अबाउट अवर फ्लैग. Okay, Indian flag. Then you can write the here Indian flag in the search box. तो आप लोग को उसके रिलेटेड सारे इमेजेस डिस्प्ले होंगे. तो इसमें से जो भी आप लोग को इमेज चाहिए वो वहाँ से क्लिक करके आप लोग इंसर्ट कर सकते हो. ओके, सो इन दिस वे यू कैन इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम द ऑनलाइन. ओके, देन आप लोग जो पिक्चर है वो मैंने बोला था कि स्क्रीनशॉट भी ऐड कर सकते हो. फॉर दैट आप लोग को क्या करना है, देखो यहाँ पे वहाँ पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल है. एक तो पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, एंड उसके बाद है स्क्रीनशॉट. जो भी आप लोग को आपके प्रेजेंटेशन में स्क्रीनशॉट ऐड करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस स्क्रीनशॉट ऑप्शन. ओके, सो उससे आप लोग क्या कर सकते हो कि स्क्रीनशॉट आपके प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हो. ओके, देन नेक्स्ट है क्रॉपिंग पिक्चर. देखो हम लोग ने अभी पिक्चर ऐड कर लिया है, हम लोग ने डिफरेंट ऑप्शन देखे. एक तो आप लोग फाइल में से इंसर्ट कर सकते हो, ऑनलाइन इंसर्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो ऐड द स्क्रीनशॉट. नाउ आफ्टर एडिंग द स्क्रीनशॉट आप लोग को आपके जो पिक्चर्स है उसको एडिट करना है. तो वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है. देखो यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर है, पिक्चर इफेक्ट है, देन पिक्चर लेआउट, देन अलाइनमेंट, रोटेट, मतलब आप लोग को पिक्चर को लेफ्ट राइट सेंटर जो भी रोटेट करना है वो देन उसके बाद आता है क्रॉप से क्या करेंगे आप लोग जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन रहेगा हमारे इमेज का उसको हम लोग कट कर देंगे. ओके, देन देखो यहाँ पे हाइट विथ से क्या करेंगे हम लोग जो भी हमारा पिक्चर से उसके साइज हम लोग अरेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस हाइट एंड विथ. ओके, सो दिस आर द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर फॉर्मेटिंग अवर पिक्चर. और क्रॉप का मतलब क्या है, जो भी अनवांटेड पोर्शन है वो हम लोग उसमें से कट कर देंगे हमारे पिक्चर्स में से. सो समझ में आया कैसे पिक्चर को ऐड करना है और उसको फॉर्मेट करना है. ओके, देन अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंसर्ट ऑडियो क्लिप. अभी हम लोग ने सीखा कि कैसे हम लोग पिक्चर ऐड कर सकते हैं. नाउ अभी सीखना है हमें कि कैसे ऑडियो क्लिप एंटर कर सकते हो. सो पावर पॉइंट अलाउ टू ऐड ऑडियो टू प्रेजेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल, presentation can be added background music to one slide, the sound effect to the another, and they even record your narration or commentary. देखो कैसे हम लोग साउंड ऐड कर सकते हैं हमारे प्रेजेंटेशन में. तो हम लोग कोई भी हमारी स्लाइड है उसको हम लोग म्यूज़िक दे सकते हैं, फिर हम लोग दूसरे उसको साउंड इफेक्ट दे सकते हैं, नहीं तो हम लोग खुद का रिकॉर्डेड वॉइस भी हम लोग ऐड कर सकते हैं इन अवर प्रेजेंटेशन. So your editing of the audio clip can be done to customize it for more better presentation. और उसको हम लोग जो भी ऑडियो क्लिप है उसको हम लोग एडिट भी कर सकते हैं. सो इन आवर प्रेजेंटेशन वी कैन ऐड द साउंड और वी कैन रिकॉर्ड अवर साउंड और वी कैन एडिट दैट साउंड. देखो यहाँ पे कौन कौन से ऑडियो फॉर्मेट हमारे प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सपोर्ट करते हैं. तो फॉर एग्जांपल MP3 है, देन MPG4 है, देन वीडियो ऑडियो फाइल, देन वीडियो मीडिया ऑडियो फाइल. ये डिफरेंट फाइल है जो सपोर्ट करते हैं हमारे पावर पॉइंट में. ओके, तो देखो हम लोग यहाँ पे हमारे प्रेजेंटेशन में वी कैन इंसर्ट द ऑडियो फाइल, otherwise we can also record our voice.
तो पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग फाइल में से ऑडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द इंसर्ट टैब। ओके, इंसर्ट टैब के अंदर आप लोग को ऑप्शन दिखेगा ऑडियो, दिखा सबको ऑप्शन ऑडियो। ओके, सो इन ऑडियो यू कैन सी द ऑडियो ऑन माई पीसी, मतलब जो भी हमारे कंप्यूटर में पहले से ऑडियो सेव्ड है वहाँ से हम लोग ऑडियो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ओके, सो ऑडियो ऑन माई पीसी। सो इससे क्या होगा, जो भी ऑडियो फाइल्स हमारे कंप्यूटर में सेव्ड है वहाँ से आप लोग ब्राउज करके वो फाइल इंसर्ट कर सकते हैं इन अवर कंप्यूटर, इन अवर स्लाइड, सॉरी। और दूसरा है रिकॉर्डिंग योर ऑडियो। नाउ sometime we may want to record audio directly into presentation. For example, we might want to presentation to include narration. देखो इसमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपको आपके प्रेजेंटेशन में आपको ऑडियो को रिकॉर्ड करना है। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द इंसर्ट, देन ऑडियो, एंड इन ऑडियो टैब you have to give the click on the record audio बटन। तो इससे क्या होगा कि आप लोग आपका वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके, सो बिफोर वी बिगिन मेक श्योर यू हैव अ माइक्रोफोन दैट इज compatible with the computer. Many computer have built-in microphone or one that can be plugged into the computer. मतलब कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड करने से पहले आप लोग को इंश्योर करना है कि यू हैव अ माइक्रोफोन, आपके पास माइक्रोफोन होना चाहिए। अभी के जो लेटेस्ट कंप्यूटर है उसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन होते हैं, बट आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट माइक्रोफोन नहीं है, देन यू हैव टू अटैच द माइक्रोफोन इन योर कंप्यूटर। ओके, सो जब आप लोग रिकॉर्ड करते हैं वॉइस, तब यहाँ पे रिकॉर्ड साउंड डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। सो वहाँ पे आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जो भी आपका नाम है साउंड ऑडियो का वो प्रोवाइड करना है इन नेम पोर्शन, और यहाँ पे देखो प्ले करना है रिकॉर्डेड वॉइस, देन यू हैव टू क्लोज ऑन प्ले बटन, देन स्टॉप करना है तो स्टॉप पे, एंड रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करो। ओके, सो इन दिस वे यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस और साउंड फॉर द प्रेजेंटेशन। ओके, देन नेक्स्ट है इंसर्ट वीडियो। हम लोग ने क्या कैसे सीखा अभी, कैसे वीडियो पिक्चर इंसर्ट करना है, दूसरा कैसे ऑडियो इंसर्ट करना है, थर्ड पार्ट दैट इज हाउ वी कैन इंसर्ट अ वीडियो इन अवर प्रेजेंटेशन। सो देखो यहाँ पे वीडियो कैन बी इंसर्टेड इनटू द स्लाइड एंड प्ले ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। मतलब हम लोग वीडियो जो है वो हमारे प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं और उसको प्ले कर सकते हैं ड्यूरिंग अवर प्रेजेंटेशन। ओके, सो वीडियो कैन बी ऑन द लोकल पीसी और इट कैन बी एडेड फ्रॉम द ऑनलाइन सोर्सेज। नाउ using the video, a message worth 1000 words can be transformed and engage the audience. now वीडियो ऐड करने से क्या होता है, जब भी हम लोग हमारे प्रेजेंटेशन में वीडियो ऐड करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो भी हम लोग मैसेज पास करना चाहते हो या जो भी टॉपिक्स ऑडियंस को कन्वे करना चाहते हैं वो इजीली उन लोग को अंडरस्टैंड होता है। ओके, और वो जो है वो हमारे ऑडियंस जो है उसको एंगेज रखता है। फॉर एग्जांपल, वीडियो कैन बी एडिटेड यूजिंग पावर पॉइंट एंड कस्टमाइज, सो ट्रिमिंग द वीडियोज लेंथ इज़ पॉसिबल एंड फेड इन एंड मैनी ऑप्शन। मतलब जो भी हमारा प्रेजेंटेशन है उसमें हम लोग हमारे वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट भी कर सकते हो, देन यहाँ पे ट्रिमिंग, देन फेड इन, फेड आउट, डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल। सो जब भी हम लोग को हमारे प्रेजेंटेशन में वीडियो ऐड करना है तो हम लोग उसको डायरेक्टली जो भी हमारे पीसी में ऐड है वो वीडियो को ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग को दूसरा कोई वीडियो जो हमारे पीसी में अवेलेबल नहीं है तो आप लोग नेट पे से डाउनलोड करके भी डायरेक्ट सर्च करके भी आप लोग ऐड कर सकते हो। ओके, सो जब भी हम लोग वीडियो ऐड करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन में तो इससे क्या होता है कि जो भी आपका मैसेज है वो आप लोग इजीली कन्वे कर सकते हो और वो जो ऑडियंस है उसको एंगेज रखता है। ओके,
सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाउ वी कैन इंसर्ट द वीडियो फ्रॉम द फाइल. Now to insert the video from the file, we can you first go to the insert option. Okay, कहाँ पे जाना है? फर्स्ट इंसर्ट पे. देन इंसर्ट में आप लोग को वीडियो का ऑप्शन दिखेगा. सो इनसाइड वीडियो you can add the video from in file. Okay, you can choose this video from file option. तो देखो, जब आप लोग वीडियो फ्रॉम फाइल ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको ये वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. उसमें से आप लोग को जो भी वीडियो और जहाँ पे भी आपके जिस लोकेशन पे स्टोर होगा वहाँ से सिलेक्ट करना है और उसको इंसर्ट करना है. ओके, तो समझ में आया कैसे हम लोग वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं इन अवर प्रेजेंटेशन. फॉर दैट यू कैन इंसर्ट टू वेज फ्रॉम फाइल. तो हम लोग ने देखा कि फाइल से कैसे इंसर्ट करते हैं. ओके, अभी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं. सो देखो, फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द इंसर्ट, देन वीडियो, एंड यू हैव टू चूज़ योर सेकंड ऑप्शन. क्या करना है आपको? सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है, दैट इज़ वीडियो फ्रॉम वेबसाइट. कौन सा ऑप्शन? वीडियो फ्रॉम वेबसाइट. ओके, सो उससे क्या होगा कि आप लोग को जो नेट पे से वीडियो अवेलेबल है वो लोग आप लोग को वहाँ की आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो. देन नेक्स्ट है टू अप्लाई वीडियो स्टाइल. नाउ जब आप लोग ने कोई भी वीडियो इंसर्ट किया है उसको स्टाइल अप्लाई करना है. देन यू कैन ऑल्सो चूज द डिफरेंट ऑप्शन. फॉर दैट यू कैन यू कैन डू द वीडियो बॉर्डर. देन वीडियो को इफेक्ट दे सकते हो, देन उसको एनिमेशन कर सकते हो. सो यू कैन परफॉर्म द डिफरेंट ऑप्शन दैट आर अवेलेबल इन अवर फॉर्मेट टैब. वीडियो को फॉर्मेट करना है तो कौन से टैब पे ऑप्शन अवेलेबल है? इन अ फॉर्मेट टैब. ओके, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंसर्ट शेप. नाउ हाउ यू कैन इंसर्ट द शेप. कैसे आप लोग शेप को इंसर्ट कर सकते हो? सो PowerPoint large shape collection allow us to organize and design the image we want. So in our PowerPoint there is large set of images are available. बहुत सारे शेप्स अवेलेबल है इन अवर PowerPoint. तो ये जो शेप्स है, डिफरेंट शेप्स है, उसके हेल्प से हम लोग इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो फॉर इंसर्ट शेप वी कैन यूज अवर insert tab, insert, then shape. Now here you can see the different shapes are available, and so you can use this shape to create the image also. Okay, then next is changing the shape style. Now how you can change the shape style? Now choosing the shape style allow us to apply the preset color and effect to quick change the appearance of the shape or टेक्स्ट. मतलब जो शेप स्टाइल है उसमें क्या होता है कि प्री डिफाइंड कलर्स एंड इफेक्ट होते हैं हमारे शेप्स के साथ. तो उससे हम लोग क्या करेंगे कि क्विकली चेंज कर सकते हैं हमारे शेप्स को. सो इफ़ यू वांट टू गिव द डिफरेंट स्टाइल्स टू द शेप, देन यू कैन चूज दिस वन ऑफ द प्री डिफाइंड इफेक्ट. तो जिससे क्या होगा, आपका टाइम है वो भी आप लोग सेव कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट है चेंज द शेप फील कलर. नाउ हियर अभी मैंने बताया कि जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है उसमें मल्टीपल मतलब बहुत सारे शेप्स अवेलेबल है. वो शेप्स की मदद से आप लोग को इमेज भी फॉर्म कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पे जो कौन सा शेप यूज़ किया गया है, ट्राइंगल यूज़ किया गया है एंड सर्कल यूज़ किया है. उसके हेल्प से यहाँ पे क्या बनाया है, एक इमेज क्रिएट किया है. तो इस इमेज को आप लोग कलर भी प्रोवाइड कर सकते हो. तो हाउ टू यू कैन फील द कलर्स? फॉर दैट यू हैव टू गो टू द फील कलर शेप फील ऑप्शन. ओके, कौन से ऑप्शन पे जाना है? शेप फील ऑप्शन. Here the different colors are available. You can choose the one of the color from as per your requirement. Okay, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग वहाँ पे कलर इंसर्ट कर सकते हो.
देन नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड आर्ट. नाउ व्हाट इज वर्ड आर्ट? क्या होता है वर्ड आर्ट? सो here you can see the PowerPoint allow to add the effect to the text inside the text box which is known as a word art. देखो PowerPoint में क्या कर सकते हैं हम लोग, जो भी टेक्स्ट बॉक्स में अवेलेबल है उसको हम लोग इफेक्ट दे सकते हैं. ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ड आर्ट. सो यहाँ पे विथ वर्ड आर्ट वन कैन ट्रांसफॉर्म द टेक्स्ट टू द गिवन इट्स वेवी स्लैंटेड एंड इन्फ्लेंटेड लुक. मतलब जो भी हमारे टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट है उसको हम लोग वेवी भी बना सकते हैं, स्लैंटेड भी बना सकते हैं. ओके, सो दिस वर्ड आर्ट स्टाइल विल ऑटोमेटिकली अप्लाई सेवरल इफेक्ट टू द टेक्स्ट एट वंस टू redefine the look of the text by adding and modifying the text effect. देखिए यहाँ पे जब भी हम लोग कोई भी वर्ड आर्ट स्टाइल अप्लाई करते हैं हमारे टेक्स्ट बुक, तो उसमें क्या हम लोग कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही स्टाइल चूज़ करके हम लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल उसको शैडो दे सकते हैं, फिर उसका स्लैंटिंग करना है तो वेविंग बनाना है, तो ये सारे हम लोग उस पर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो हाउ यू कैन ऐड द वर्ड आर्ट. देखो वर्ड आर्ट इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे? फॉर दैट व्हाट यू हैव टू गो डू, इंसर्ट देन वर्ड आर्ट. ओके, सो यहाँ पे देखो डिफरेंट वर्ड आर्ट अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लोग चूज़ कर सकते हो. जो भी स्टाइल आप लोग को अप्लाई करनी है वो वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज एनिमेशन टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट. नाउ हियर द टेक्स्ट, पिक्चर, शेप, table and smart art, all the other objects in the PowerPoint presentation can be animated to give the visual effect. So including extends, exist, change in size or color and even movement. मतलब इसमें क्या हो सकता है कि जो भी हम लोग एलिमेंट हमारे प्रेजेंटेशन में ऐड करते हैं, हम लोग टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं. अभी हम लोग ने सीखा कि कैसे वीडियो एंड ऑडियो इंसर्ट करना है हमारे प्रेजेंटेशन में. तो ये सारे ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एनिमेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. क्यों एनिमेशन प्रोवाइड करना है? कि एनिमेशन प्रोवाइड करने से जो भी हमारा प्रेजेंटेशन का है उसको विजुअल इफेक्ट इंक्रीज होगा. ओके, सो यू कैन सी हियर फर्स्ट देखो कैसे हम लोग एनिमेशन ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे डिफरेंट एनिमेशन अवेलेबल है. फॉर दैट यू हैव टू गो टू द विच ऑप्शन फॉर सिलेक्ट, यू हैव टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट. ओके, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट मतलब जो भी ऑब्जेक्ट को आप लोग को एनिमेशन देना है उसको सिलेक्ट करो. देन इन एनिमेशन टैब यू हैव टू गो टू द एनिमेशन, ऐड एनिमेशन. तो यहाँ पे देखो डिफरेंट एनिमेशन अवेलेबल है. देखो अपीयर, फेड, देन फ्लोटिंग, स्प्लिट, वाइड, शेप, ये सारे क्या है? एनिमेशन है. तो उसमें से आप लोग जो भी आप लोग को पसंद है या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जो भी एनिमेशन आपको ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ट्रांजिशन. नाउ व्हाट इज ट्रांजिशन? यहाँ पे देखो देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ यूनिक ट्रांजिशन टू चूज फ्रॉम ऑल ऑफ विच फाउंड इन अ ट्रांजिशन. वहाँ पे 3 टाइप्स के ट्रांजिशन अवेलेबल है इन अवर पावर पॉइंट. तो देखो कौन कौन से ट्रांजिशन अवेलेबल है. सो टू अप्लाई ट्रांजिशन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट चूज योर स्लाइड. क्या करना है? पहले आपकी स्लाइड सिलेक्ट करो, फिर उसमें गो टू द ट्रांजिशन ऑप्शन. तो इस पर जाना है ट्रांजिशन ऑप्शन पे. देन इन सेकेंड यू हैव टू चूज द वन ऑफ द ऑप्शन फ्रॉम योर. ओके, then you can see here slide is format with the transition. तो मैंने अभी बताया कि 3 टाइप्स के ट्रांजिशन अवेलेबल है इन अवर माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन. तो देखो फर्स्ट है हमारा सबटेल. सबटेल कब यूज़ होता है? देर आर द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ ट्रांजिशन. दे यूज सिंपल ट्रांजिशन टू मूव बिटवीन स्लाइड. देखो सबसे पहले आता है सबटेल. तो सबटेल जो है वो क्या है?
वो बेसिक्स टाइप के ऑफ ट्रांजिशन है, उसमें क्या होते हैं, सिंपल ऑप्शन एनिमेशन ऑप्शन रहता है जो मूव करने के लिए यूज़ होता है बिटवीन द स्लाइड्स। देन दूसरा है एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का मीनिंग क्या है, दिस यूज मोर कॉम्प्लेक्स एनिमेशन टू ट्रांजिशन बिटवीन स्लाइड विथ ले वाइल दे आर मोर विजुअली इंटरेस्टिंग देन सबटाइल ट्रांजिशन। देखो अभी हम देखा सबटाइल में क्या रहता है कि वो सिंपल एनिमेशन होता है, बट ये जो एक्साइटिंग में क्या होता है कि उसमें कॉम्प्लेक्स एनिमेशन होता है बिटवीन अवर slide and they give the more visual effect than our subtle transition. Then थर्ड है हमारा डायनेमिक कंटेंट। लास्ट में देखो डायनेमिक कंटेंट, तो ये क्या है, ट्रांजिशनिंग बिटवीन द टू स्लाइड दैट आर सिमिलर स्लाइड लेआउट। डायनेमिक ट्रांजिशन विल मूव ओनली द प्लेस ऑर्डर नॉट द स्लाइड themselves. So when they correctly dynamically transition can help unify the slide and add for the level of the presentation. देखो जब भी कोई भी दो स्लाइड के बीच में सिमिलर लेआउट रहता है, ओके, देन वी कैन यूज दिस डायनेमिक कंटेंट। ओके, सो these are the three basics option categories available in our transition. Okay, है subtle, then exciting and dynamic content, okay, that are used to give the transition effect between the two slide. Then next है how you can preview the transition. ना जो आप लोग ने अभी ट्रांजिशन ऐड किया है उसको आप लोग को प्रीव्यू करके देखना है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो दिस ऑप्शन. सो प्रीव्यू ऑफ ट्रांजिशन फॉर सिलेक्टेड साइड कैन बी डन एट एनी टाइम यूजिंग आइदर ऑफ दिस टू मेथड. देखो जो भी ट्रांजेक्शन आप लोग ने ऐड किया है उसका आपको प्रीव्यू करना है. ओके, देन यू कैन चूज दिस ऑप्शन दैट इज प्रीव्यू. ओके, सो you can click on this button to preview your transition. Then our next topic, that is speaker notes. Now what is speaker note? Speaker note are also known as a note page. speaker note को क्या बोलते हैं हम लोग? note page. now क्या होता है speaker note? speaker note are reserved space for each slide in the presentation that is intended to be used by the presenter for many different purpose. देखो ये जो स्पीकर नोट क्या रहता है कि वो रिजर्व स्पेस रहता है हमारा प्रेजेंटेशन का, वो हर एक स्लाइड के साथ अटैच रहता है. उसमें क्या रहता है कि वो मेनली डिज़ाइन किसके लिए किया गया है, जो भी प्रेजेंटर रहता है जो प्रेजेंटेशन का उसके लिए. तो वो जो पेज है या नोट्स है उसको जो हमारा प्रेजेंटर रहता है वो डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो प्रेजेंटेशन कैन ऐड सम की पॉइंट दैट वी वांट टू कवर ड्यूरिंग द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. तो ये स्पीकर नोट या नोट पेज में वो कौन से डेटा ऐड कर सकते हैं, उसमें वो लोग की पॉइंट ऐड कर सकते हैं. कौन? हमारे प्रेजेंटर, जो उन लोग को कवर करने रहते हैं ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन. तो मेनली जो स्पीकर नोट और नोट पेज है वो बेसिकली डिज़ाइन किसके लिए किए गए हैं, हमारे प्रेजेंटेशन के लिए. उसमें वो बेसिकली वो क्या स्टोर करता है, की पॉइंट्स जो उसको वो प्रेजेंट करना है ड्यूरिंग अवर प्रेजेंटेशन. ओके, सो हाउ यू कैन ऐड द स्पीकर नोट? टू ऐड द स्पीकर नोट यू कैन चूज द व्यू ऑप्शन. ओके, गो टू द व्यू और यू कैन सी योर नोट पेज. नोट पेज दिख रहा है ना, तो वो किसके लिए होगा? सी हाउ योर प्रेजेंटेशन विल बी लुक व्हेन प्रिंटेड आउट विथ नोट्स. तो यहाँ पे देखो कि नीचे जो स्पेस दिख रहे हैं वहाँ वो स्पेस पे आप लोग आपका नोट्स जो है वो लिख सकते हो. ओके, नहीं तो आप लोग को ऐड करना है आपका स्पीकर नोट. देन आपके जो स्टेटस बार है उसमें नीचे आप लोग को डिस्प्ले होगा नोट्स करके आइकन रहेगा, वो आइकन पे क्लिक करेंगे. then also you can write the speaker note on your slide or in your presentation. okay, so speaker note क्या रहता है? स्पीकर नोट एक रिजर्व स्पेस रहती है, वो अटैच होती है हर एक स्लाइड के साथ. उसमें जो भी हमारा प्रेजेंटेटर रहता है वो की पॉइंट ऐड करता है
अबाउट देयर प्रेजेंटेशन और जो उसको प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करनी रहती हैं. ओके. Then next, how to print a presentation. Now if you want to print your presentation, then you have to go to the file option, then click on this print option. So you can see that the PowerPoint includes several layouts when printing a presentation. The layout we choose will most depend on the way you are printing the slideshow. देखो, जब भी हम लोग को प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना है, देन देर आर वेरियस लेआउट अवेलेबल. मतलब वो लेआउट हम लोग किस पे डिपेंड करना है कि क्यों हम लोग हमारा प्रेजेंटेशन प्रिंट करवा रहे हैं. तो वहाँ पे 4 बेसिक लेआउट अवेलेबल है. वो कौन से रहेंगे? एक तो आपके फुल पेज स्लाइड, देन सेकेंड रहेगा आपका नोट्स, देन आउटलाइन एंड हैंड आउट. दिस आर द डिफरेंट layout that is available during the printing. So if you want to print your presentation, then you have to go to the file, then print option, and in print option there are various options are available. You can choose this option as per your requirement. Okay. So आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा? We learn about how to add audio, then pictures, videos, then how we can add shapes, and then how we can add animation and transition in our presentation, and last we learn how to print our presentation. So I hope you all understand today's topic. Thank you.